بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope all of you are doing well. Today we are going to have a review of T1 Physics class 10, chapter number 10 Simple Harmonic Motion and Waves, chapter number 11 Sound. First we will have a review of chapter number 10. Topics that are included in your syllabus are simple harmonic motion, wave motion, types of mechanical waves, relationship between frequency, velocity and wavelength. Numerical problems that are included in your syllabus are 10.1 till 10.4 and then review questions. Simple harmonic motion. As you know that simple harmonic motion जो है उसमें आपके पास दो उन्होंने examples दी हुई हैं, motion of mass attached to a spring, then motion of simple pendulum. आप जब मोशन ऑफ मैस जो है अटैच्ड स्प्रिंग को एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आपको हुक्स लॉ, स्प्रिंग कांस्टेंट, इनकी डेफिनेशन साथ दी हुई है, उसका यूनिट दिया हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है. यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज विद द लेबल डायग्राम. आपके पास मैस अटैच्ड स्प्रिंग की जो डायग्राम दी हुई है उसमें साथ साथ आपको 2 पॉइंट्स पे एक मीन पॉइंट और एक आपका हाईएस्ट पॉइंट जो है वहां पे आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज दी हुई हैं. ये यूजुअली आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है. देन नेक्स्ट कम्स मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम जो है उसमें भी सेम आपने डायग्राम लेबल के साथ इसको सारे को एक्सप्लेन करना है. यूजुअली क्वेश्चन ये आता है, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और या फिर ये पूछा जाता है, प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके साथ नीचे जो आपके पास आ रही है, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके साथ साथ उसको जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, 4 आपने राइट करनी होती है. नीचे उसके साथ आपके पास पेज नंबर 6 पे सम टर्म्स हैं दैट आर रिलेटेड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक वेव मोशन. वेव मोशन में आपकी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, टाइप्स ऑफ वेव्स दी हुई हैं. नीचे वेव मोशन में आपकी एक्टिविटी 10.2 इंक्लूडेड है. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. As you know that there are 2 types of mechanical waves, transverse waves and longitudinal waves. दोनों टाइप्स जो हैं उन पे या तो लॉन्ग क्वेश्चन में नोट आ जाता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आता है. When you are writing the difference, you have to write on the definition of both, but keep it in mind that you will write the difference in column. Then explain about the wavelength. As you know that in longitudinal wave, compressions and rarefactions are found, and in transverse waves crest and troughs are found, and the distance between two consecutive compressions or compressions and rarefaction, or in case of longitudinal in case of transverse waves, distance between consecutive crest or trough is known as wavelength. You have to draw the diagram and label it. Last topic of this unit is relationship between velocity, frequency and wavelength. लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस इसके आते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी डेरिवेशन जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो एग्जांपल आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं उनको भी अच्छी तरह से देखिएगा और रिव्यू क्वेश्चंस को भी. चैप्टर नंबर 11 साउंड. Topics that are included in this chapter: sound waves, characteristics of sound, sound intensity level, speed of sound, audible frequency range. Then from exercise numerical problems and review questions. Sound waves. Different इसमें topics हैं आपके sound waves में. That is sound is produced by the vibrating body. Then sound requires material medium for its propagation. Longitudinal nature of sound. You have to learn these with their activities. Next is characteristics of sound. As you know that we differentiate or distinguish sound of different objects on the basis of different characteristics. These characteristics include loudness, pitch, quality.
And loudness is further divided into other characteristics, that is amplitude of vibrating body, area of vibrating body, distance of the vibrating body, and loudness also depends upon the physical condition of ear of the listener. The next topic is sound intensity level. You have to define the intensity of sound and then sound intensity level. इसके आगे डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें आपके पास साइड पे कॉलम दिया हुआ है, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी दी हुई है, और इसमें साउंड की जो है आपकी इंटेंसिटी लेवल में भी और डेसिबल में भी वैल्यूज ली गई हैं। इसमें से कोई ना कोई वैल्यू जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, तो इसलिए इस कॉलम को और इससे नीचे जो कॉलम दिया हुआ है दैट इज अ लॉगरिथमिक स्केल है और लीनियर स्केल है साउंड का, उसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड एज यू नो दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल मीडियम। आपके जो मीडियम है दैट इज लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, सब में आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट होती है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सो ये आपका एक शॉर्ट टॉपिक है और ये यूजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आपको पता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो आपकी यूजुअली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, और जो आपके ओल्ड पीपल है उसमें ये थोड़ी सी कम हो जाती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके जो इंक्लूड है इस चैप्टर के दैट इज 11.1 टिल 11.4, देन 11.6 एंड 11.9। एग्जांपल्स जो इंक्लूडिंग है उनको भी अच्छी तरह से कीजिएगा। रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा, वो आपके चैप्टर से ही सारे उनके आंसर हैं।